Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. I welcome you all in the today's video session with a new chapter, that is chapter 13, lines and angles. In the previous class we had studied simple interest, that was the last video session. From today we will start on with new chapter, lines and angles. It is a very important chapter as well as a very short chapter, as most of the things you have studied in the last class. So let's start with the properties itself. Chapter 13, lines and angles. Do watch the complete video for better understanding. Chapter 13, lines and angles. You all have studied a lot about lines and angles in class 6, about lines, what are rays, line segment, lines. You all have studied these things, and about the angles you all have studied types of angles, acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, complete angle. But in class 7th we will take this thing to a next level and we will start on with properties of angles, which include line itself. So let's start with properties of angles. Properties of angles. The first which comes in the property of angle is complementary angle. Complementary angle. What is complementary angle? Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Suppose you have an angle A and an angle B, and if we add both of these, then if the sum of both of these angles is 90 degree, then it is said that A is complementary of B or B is complementary of A. For example, I am not writing the definition as I have given the definitions to you yesterday morning. For example, let angle A is equal to 70 degree. I'll say you find the complement of angle A. If angle A is 70 degree, then what will be its complement? इसका complement क्या होगा? जिसका complement होगा वो 90 से कम होगा. तो complement of A निकालने के लिए I can write complement of angle A is equal to 90 degree minus 70 degree. So what is complement? 20 degree. What is complement of A? If A is 70 degree, then what is complement of A? Complement of A is 20 degree. Okay. If I give that angle A and angle B are complementary, find angle B. If angle A is equal to 70 degree and angle A and angle B are complementary, let me write angle A is equal to 70 degree, angle B is equal to what? If angle A and angle B are complementary. तो सिंपली यहाँ पर कोई भी दूसरा एंगल का नाम मैंने नहीं दिया था, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए का ही कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपसे बोला तो आपने 90 में से माइनस कर दिया. लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए इक्वल टू 70 डिग्री बी निकालिए. क्या कंडीशन है जब ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री? तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल कितना होना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. एंड व्हाट इज एंगल ए? एंगल ए इज 70 degree plus angle B is equal to 90 degree. So what will be the value of angle B? Angle B will be 90 degree minus 70 degree. So what will be angle B? Angle B will be equal to 20 degree. तो क्वेश्चन आपसे किसी भी कंडीशन में पूछा जा सकता है. आई एम नॉट हियर टू गिव फाइंड एंगल B, फाइंड एंगल C. I'll give any angle 63 degree. I'll say find the complement of 60 degree. So what you will do? You will subtract it from 90 degree. I can even give angle A and ask you to find angle B, and the condition is that angle A and angle B are कॉम्प्लीमेंट्री. तो आप समझ गए होंगे किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. supplementary angle. Again, I am not writing definition as I have given it. What is supplementary angle?
any two angle, if the sum of any two angle, angle A plus angle B is equal to 180 degree, then this is the condition for supplementary angle. ओके अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री. क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री. इफ आई गिव यू एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड सप्लीमेंट of angle A, find supplement of angle A. What will you do? You will simply subtract supplement of angle A is equal to 180 degree minus 100 degree. What will you get? 80 degree. What is the supplement of angle A? Supplement of angle A is 80 degree. Why it is 80 degree? Because we know that if the sum of two angles is 180 degree, then only it can be supplementary degree. If angle A was 100 degree, then its supplement will be less than 180 degree, and what will be it? It will be 80 degree. Okay. If I give you condition angle A is equal to 100 degree, angle B is equal to what? If angle A and angle B are supplementary. Again, you know that angle A plus angle B is equal to 180 degree. Why? Because angle A and angle B are supplementary. So what is the value of angle A? 100 degree plus angle B is equal to 180 degree. So angle B is equal to 180 degree minus 100 degree. Angle B is equal to 80 degree. I hope it is clear to everyone. आप ये पढ़ भी चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री. This is very easy. Now let's move next. What is next? A very important concept regarding angles. And what is it? Adjacent angle. Adjacent angles. Adjacent angles. Okay. Let me first write the definition of this, and then I'll explain you the definition. What is adjacent angle? Two angles with the same vertex one arm common and the other arms lying on opposite sides of the common arm are called adjacent angles. So this is the definition of adjacent angle. Two angles with the same vertex, one arm common and the other are lying on the opposite sides of the common arm are called adjacent angle. बहुत लोगों को definition समझ में नहीं आएगा. So let me first explain you the definition. I am taking a straight ray, name it as OA. Again OB and again OC. This is my first angle and this is my second angle. Okay, what is adjacent angle definition speaking? Two angles with the same vertex. What is the meaning of vertex? Vertex means corner, corner. Two angles with the same vertex. Angle BOA and angle BOC, क्या दोनों के पास सेम वर्टेक्स O है? वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर.
टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, एक एंगल मेरा AOB है, दूसरा BOC है, या BOA या BOC, कुछ भी बोलिए, हम बोलते हैं AOB एक एंगल, इसको 1 नाम दे दिए, और एक एंगल BOC ये दूसरा एंगल, इसको नाम 2 दे दिए। तो इन दोनों का क्या है, कॉमन वर्टेक्स O है, सेम वर्टेक्स O, 1 आर्म कॉमन। ये आप OB को देखिए, क्या ये जो आर्म है ये दोनों एंगल में है, COB में भी आता है OB और AOB में भी आता है OB, तो दोनों में कॉमन है। एंड द अदर आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ये आर्म तो कॉमन है, तो बाकी दोनों जो आर्म बचा, एक हो गया OA और एक हो गया OC, क्या ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है? बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है, बगल में तो है नहीं, अपोजिट है, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। सिंपल भाषा में समझा जाए तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट वाले, और या फिर बगल वाले एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, दो एंगल जिन दोनों का वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर सेम हो, एंड द सेम वर्टेक्स, 1 आर्म कॉमन, एक आर्म जो हो वो दोनों में कॉमन हो, दोनों एंगल्स में, एंड द अदर आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म, बाकी दोनों जो आर्म है ये कॉमन आर्म के अपोजिट में लाई करता हो, वैसे को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर 1 और 2 आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो 1 का नाम क्या था? AOB, और 2 का नाम क्या है? BOC। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। आई होप इट इज क्लियर। एडजेसेंट का मतलब जस्ट बगल वाला एंगल। इस एंगल के बगल में कौन सा एंगल है? ये वाला। इसके बगल में अगर और कोई होता तो वो क्या होता? एडजेसेंट एंगल। लेकिन 1 के एडजेसेंट नहीं होता, वो किसका एडजेसेंट होता? 2 के एडजेसेंट होता। क्लियर? किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते हैं। लीनियर पेयर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर, टू एडजेसेंट एंगल्स two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if non-common arm are two ऑपोजिट रेस। ये है डेफिनेशन लीनियर पेयर का। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ नॉन कॉमन आर्म आर टू ऑपोजिट रेस। यहाँ पर कौन कौन? ये दोनों ऑपोजिट आर्म थे ना, ये दोनों क्या थे? ऑपोजिट आर्म है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट आर्म जो होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट रेज होंगे, इन द सेंस कि एक पॉइंट O, एक रे इधर और एक रे इधर, बीच में कहीं पे भी पॉइंट, इसका नाम दे दिए O, इधर A, इधर B, और एक रे ऊपर, इसका नाम दे दिए C। तो ये एंगल और ये एंगल, टू एडजेसेंट एंगल। क्या ये दोनों एकदम एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि बगल वाले एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों आर्म जो है वो नॉन कॉमन आर्म है, आर टू ऑपोजिट रेज। ये दोनों आपस में क्या है? एक इस साइड जा रहा है लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो ये दोनों ऑपोजिट है। देयरफॉर एंगल AOC एंड एंगल BOC, इसका नाम 1 और 2 लिख देते हैं। तो एंगल AOC एंड एंगल BOC आर पेयर ऑफ, या फिर लीनियर एंगल्स, या फिर आर लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, या फिर आर लीनियर एंगल्स भी लिख सकते हैं। एंगल AOC का मतलब एंगल 1 एंड एंगल BOC का मतलब एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे हैं? लीनियर पेयर। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर कि AOB क्या है? अब क्या हो गया?
स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, 180 डिग्री। सिंस AOB is a straight line, therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। AOB क्या है कि स्ट्रेट लाइन, तो उस पर जो भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और जब सिर्फ दो एंगल्स बनेंगे, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिर्फ एक लाइन, एक रे ड्रॉ होगा, यहाँ पर सिर्फ दो एंगल्स बनेगा, दोनों का सम 180 डिग्री, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, अब हम लोग एक इसी में एक कंसेप्ट और समझते हैं। एक सपोज करिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी पॉइंट OA और यहाँ पर OB, यहाँ पर एक रे OC, इधर एक रे OD, एंगल एंगल एंगल, इसका नाम X देती है, इसका नाम Y और इसका नाम Z। तो क्या होगा, यहाँ पर AOB फिर भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। AOB प्लस DOC प्लस COB, तो AOB को हमने क्या माना था, AOB नहीं बच्चा, सॉरी, AOD, DOC और COB। AOD को हमने क्या माना था, X, DOC को क्या माना था, Y और COB को क्या माना था, Z। X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहां पर लीनियर पेयर नहीं लिख सकते हैं। यहां पर रीजन क्या होगा, बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां पर लीनियर पेयर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिर्फ एक रे है और यहां पर सिर्फ दो एंगल बन रहा है। जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बनेंगे रिस्पेक्टिवली तो उसको बोलेंगे लीनियर पेयर, और जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो या दो से अधिक एंगल्स बनेंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल टिल हियर। लेट्स मूव फर्दर। Again, a very important concept is coming. The concept is the sum of all angles around a point is 360 degree. A very simple concept. Sum of all angles around a point is 360 degree. अगर कोई भी एक पॉइंट के चारों तरफ कहीं पे भी एंगल्स है तो उन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सपोज दिस इज अ पॉइंट A, OA, OB, OC एंड OD। तो ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल plus this angle will be equal to 360 degree. Why? Because it is around the point, and as you all know that in a straight line or any line the angles around the point used to be 360 degree. तो इस पॉइंट के चारों तरफ एंगल्स हैं, तो इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसका नाम दे देता है X, Y, Z, P। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOA, सबका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। एंगल AOB कितना है, AOB कितना है, Y प्लस BOC कितना है, Z प्लस COD कितना है, P प्लस DOA कितना है, X।
सब क्वेश्चन 360 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब आपसे यहीं पर एक चीज पूछते हैं। सपोज करिए कि यही सेटअप है, आपसे पूछेंगे कि AOB का एडजेसेंट एंगल बताइए, क्या होगा आपका आंसर। AOB का एडजेसेंट, अभी आपको क्या बताया, एडजेसेंट का मतलब बगल वाला एंगल। तो ध्यान से देखिए AOB के बगल में क्या BOC है, तो पहला एडजेसेंट एंगल, और एक लेफ्ट साइड में तो देखिए AOB का एडजेसेंट क्या AOD है। तो AOB का कितना एडजेसेंट, दो एडजेसेंट, कौन कौन, एक AOD और एक BOC। अगर हम BOC का पूछे तो कौन कौन हो जाएगा, एक BOA हो जाएगा और एक COD हो जाएगा, ऑपोजिट वाले को छोड़कर। ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। मान लीजिए कि हम आपसे पूछे कि AOD का बताइए, तो AOD का जस्ट पीछे वाला यानी कि जेड को छोड़कर AOD का क्या होगा, AOB होगा और DOC होगा, बस जेड वाले को छोड़कर, ऑपोजिट वाले को छोड़कर ये दोनों हो जाएगा। एक्स का एडजेसेंट वाई और एक्स का एडजेसेंट पी, बगल वाला, बस जेड नहीं होगा क्योंकि जेड क्या है, जेड तो ऑपोजिट है। ठीक है, आपको यही कंसेप्ट याद रखना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसको छोड़ दिए ऑपोजिट एंगल, अब हम लोग वहीं पे आते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हेडिंग लगा लीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। टू एंगल्स are called a pair of vertically opposite angle angles if their arms form two pairs of opposite rays। ओके, एक रे ए, बीच में कहीं पे पॉइंट O B, COD, ठीक है ना। एक हो गया AOB और एक हो गया COD। तो यहाँ पर दो रे है, कौन कौन रे हैं, यहाँ पर दो रे, एक रे AB और एक रे CD। ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है। लिख देते हैं AB रे एंड रे CD इंटरसेक्ट एट O, कहां पर मिलते हैं, O पर। तो यहां पर दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेगा, कौन कौन, AOD, इसके ऑपोजिट कौन हो, इसका नाम दे देते हैं X, इसका Y, इसका Z और इसका K। तो एंगल AOD, एंगल AOD एंड एंगल BOC and angle BOC are vertically opposite angles। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में कौन होगा बच्चा, BOD, एंगल BOD एंड एंगल AOC, एंगल AOC are vertically opposite angles। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर दो पेयर कौन कौन हो गए, एक AOD और एक BOC और एक AOC और एक BOD। तो अगर समरी में लिखे, शॉर्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, X एंड Z और Y एंड K। Y एंड K क्या है,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप इट इज क्लियर, आप सबको समझ में आ गया होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, एक्स एंड जेड एंड वाई एंड के। लेट्स मूव फर्दर। अब आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल कैसे होते हैं। यहां तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बट द वर्टिकली पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ पर एक्स और जेड, यहाँ पर मैंने सिर्फ पेयर लिखा है, लेकिन एक्चुअली में एक्स और जेड इक्वल होंगे और वाई एंड के पेयर है, वाई और के आपस में इक्वल होंगे। तो क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो देखते हैं वो कब होंगे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, थ्योरम। थ्योरम 1 लिख देते हैं। क्या है थ्योरम, ध्यान से देखिएगा। इफ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angles so formed are इक्वल। ये थ्योरम है और इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। क्या है थ्योरम, इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। कोई भी दो ठो लाइन है, ए बी सी डी आपस में इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि इसमें जो वर्टिकली एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो कौन कौन सा एंगल वर्टिकली बन रहा है, इसके वर्टिकली ये और इसके वर्टिकली ये तो क्लियर है। इसका नाम एक्स वाई जेड और पी मान लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ, सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओके, रे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पर। ध्यान से देखिए, ये सी ओ डी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। अब ए ओ बी किसी को भी ले सकते हैं। अगर हम चलिए हम ए ओ बी को लेते हैं, ये ए ओ बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे क्या है, रे ओ डी खड़ा है ना। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस रे, कौन सा रे, ओ डी, सिंस रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पर खड़ा है, OD AB लाइन के ऊपर खड़ा है। सिंस रे OD स्टैंड्स ऑन, सिंस रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन CD, ये AB क्या है, लाइन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल DOB is equal to 180 डिग्री। लीनियर पेयर, फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखिए, ये OD रे किसके ऊपर खड़ा है, AB के ऊपर खड़ा है। तो ये एंगल और प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अभी जस्ट पढ़े हम लोग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक रे है और सिर्फ दो एंगल्स बनता है तो उन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल AOD और DOB दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। और अगर और लिखना चाहे तो AOD क्या है, AOD क्या है, X प्लस DOP क्या है, Z। तो X प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी साथ में जोड़ देते हैं। क्लियर है। अब आगे आते हैं। अगेन OB
OB, क्या OB भी एक रे है? ये किसके ऊपर खड़ा है? CD के ऊपर खड़ा है। बिल्कुल लिख सकते हैं अगेन, रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन? CD, लाइन CD के ऊपर खड़ा है। तो फिर यही कंडीशन, इसको कवर कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? y प्लस जेड कितना हो जाएगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो क्या लिख सकते हैं? y प्लस जेड यानी कि COB, एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। एंगल COB कितना है? COB को मैंने क्या माना है? y प्लस BOD को मैंने क्या माना है? BOD क्या है? z। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड हो गया। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से x प्लस जेड भी कितना? 180 डिग्री और y प्लस जेड भी कितना? 180 डिग्री। यानी कि x प्लस जेड भी 180 डिग्री और y प्लस जेड भी कितना? 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल है। ये x प्लस जेड 180 के इक्वल है और y प्लस जेड किसके इक्वल है? 180 इक्वल है। यानी कि ये दोनों किसी एक चीज के इक्वल है। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन था। तो x प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? y प्लस जेड के इक्वल। 180 डिग्री का वैल्यू क्या है? y प्लस जेड। तो 180 डिग्री की जगह पर हम क्या रख दिए? y प्लस जेड। समझ में आ रहा होगा आपको। x प्लस जेड किसके बराबर था? 180 के बराबर था। और y प्लस जेड किसके बराबर था? 180 के बराबर था। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू y प्लस जेड। फ्रॉम 1 एंड 2, तो प्लस जेड और प्लस जेड तो कट जाएगा। तो क्या बच गया? x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू y। ध्यान से देखिए ऊपर, ये x और y कैसे एंगल्स थे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जब x इज इक्वल टू y हमने क्या कर दिया? प्रूव्ड। हेंस पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट angles are always equal। हमेशा क्या होंगे? इक्वल। सिमिलरली जैसे x इज इक्वल टू y हो गया, उसी तरीके से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p। सिमिलरली z इज इक्वल टू p। तो क्या लिख सकते हैं एक बार? x इज इक्वल टू y and z is equal to p. Reason, vertically opposite angles, VOA, vertically opposite angles. I hope it is clear to everyone. तो इस क्लास में, इस चैप्टर में आपको इतना ही चीज पढ़ना है। इस थ्योरम को आप अच्छे से एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा और खुद से सॉल्व करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? लेट मी शो यू द थ्योरम वंस अगेन, ताकि आप सब कॉपी में उतार सकें। दिस इज द थ्योरम। आप अच्छे से देख लीजिए और आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। हैव अ गुड डे।